Friends, I have a story to share with you today which may alter your perception of your problems. It's about a prince, a stone, and a lesson that can transform your life as well. Once there was a young prince named Veer who lived in a peaceful kingdom. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने लगी हूँ जो शायद आपके मसाइल को देखने का अंदाज बदल दे। ये एक शहजादे, एक पत्थर और एक ऐसे सबक के बारे में है जो आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान शहजादा था जिसका नाम वीर था। वो एक पुरअमन सल्तनत में रहता था। Veer was a kind person, yet he had one major issue. He never worked hard. He loved comfort. When it was hot, he remained in his room. If it rained, he slept more. In case of any hardships, he said, "Why should I bother? Others will do it." The king, his father, worried. He often asked himself, "How shall my son be king of kingdom? If he flees away out of all the problems?" वीर दिल का अच्छा था, मगर उसमें एक बड़ी कमी थी। वो कभी मेहनत नहीं करता था। उसे आराम बहुत पसंद था। गर्मी होती तो अपने कमरे में रहता, बारिश होती तो और ज़्यादा सोता। अगर कभी कोई मुश्किल आ जाती तो कहता, मुझे कोई फिक्र करनी चाहिए, कोई और कर लेगा। उसका बाप यानी बादशाह बहुत फिक्रमंद रहता था। वो अक्सर सोचता, मेरा बेटा इस सल्तनत का बादशाह कैसे बनेगा अगर वो हर मुश्किल से भागता रहे। One day the king thought he would give him a lesson. One night before sunrise, he commanded a big stone to be laid forth, squarely in the center of the great roadway, the very same road that they all followed to the market. Then the king hide and look. People had started to arrive in the morning. One of the merchants beheld the stone and cried, "Who put this here? This rock will make me late." He circled around it and proceeded. Then came a soldier. He hit the stone, broke his feet, and swore. A woman who was going to get water pots looked and sighed. Why does the king not repair the roads? एक दिन बादशाह ने सोचा कि उसे एक सबक सिखाना चाहिए। एक रात सूरज निकलने से पहले उसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा पत्थर शाही सड़क के ऐन बीच में रख दिया जाए, वही सड़क जिससे सब लोग बाजार जाते थे। फिर बादशाह छुपकर ये सब देखने लगा। सुबह होते ही लोग आने लगे। एक ताजिर ने पत्थर देखा और गुस्से से कहा, ये कहाँ किसने रखा है? इस पत्थर की वजह से मुझे देर हो जाएगी। वो पत्थर के इर्द गिर्द से गुजर गया और आगे बढ़ गया। फिर एक सिपाही आया, वो पत्थर से टकराया, पाँव जख्मी कर बैठा और गालियाँ देने लगा। एक औरत जो पानी के घड़े लेने जा रही थी, उसने पत्थर को देखा और आह भरी, बादशाह सड़कों को ठीक क्यों नहीं करवाता? Why not? Everyone complained. No one tried to move the stone. Hours passed. And lastly, there came a poor farmer. He had some vegetables on his back. He paused on seeing the large rock. He was weary, but with a low voice he said, "When I fail to move it, other people may get injured." So he put his basket down and began to push the stone. It was hard. His hands slipped. Sweat rolled down his face, but he didn't stop. Bit by bit he pushed the rock aside of the road, and when the stone moved, he saw a small bag underneath. He took off the cover, and his eyes were opened. बादशाह सड़कें क्यों ठीक नहीं करवाता? हर कोई शिकायत करता रहा, मगर किसी ने भी पत्थर हटाने की कोशिश ना की। घंटे गुजर गए। आखिरकार एक गरीब किसान आया जिसकी पीठ पर सब्जियों की टोकरी थी। उसने बड़ा पत्थर देखा तो रुक गया। वो थका हुआ था, मगर आहिस्ता आवाज़ में बोला, अगर मैंने ये ना हटाया तो और लोग जख्मी हो सकते हैं। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और पत्थर को धकेलना शुरू किया। ये बहुत मुश्किल था। उसके हाथ फिसलते रहे, पसीना उसके चेहरे से बहने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी थोड़ी कोशिश के बाद उसने पत्थर को सड़क के किनारे कर दिया। जब पत्थर हटा तो उसके नीचे एक छोटा सा थैला नजर आया। उसने थैला खोला तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। There were coins of gold and a note found inside. The note said, "Here is the reward of the one who paves the way of the others."
The farmer smiled. He had no idea that the king had written that note with his own hand. On this very evening, the king summoned his own son, Prince Vir, and declared to him what had occurred. He said, "Son, difficulties do not consist of punishment. They are tests. All the challenges that you encounter are an opportunity." उसमें सोने के सिक्के और एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, ये उस शख्स का इनाम है जो दूसरों के लिए रास्ता साफ करता है। किसान मुस्कुरा दिया। उसे ये मालूम नहीं था कि ये पर्ची खुद बादशाह ने अपने हाथ से लिखी थी। उसी शाम बादशाह ने अपने बेटे शहजादे वीर को बुलाया और उसे सारा वाक़या सुनाया। फिर उसने कहा, बेटा, मुश्किलात सज़ा नहीं होती, ये आजमाइश होती हैं। जो चैलेंज तुम्हें ज़िंदगी में मिलते हैं वो तुम्हें मजबूत बनाने का मौका होते हैं। ज़िंदगी का असल ख़जाना शिकायत करने से नहीं बल्कि अमल करने से मिलता है। Finding the true treasure in life only comes by doing, not by complaining. The prince learnt a lesson that day which he neither forgot. He said, "This time, no more of walking about the stone." जिंदगी का असल खजाना शिकायत करने से नहीं बल्कि अमल करने से मिलता है। उस दिन शहजादे ने एक सबक सीखा जो वो कभी ना भूला। उसने कहा, अब मैं पत्थर के इर्द गिर्द नहीं चलूंगा, मैं उसे हटाना शुरू करूंगा। I'll start moving it. Dear listeners, that is true for all of us as well. There will always be stones on our path in life, delays, rejections, failures. But keep in mind, behind any problem there lies a veiled gift. Don't complain. Don't stop. Just move the stone. प्यारे सुनने वालों, ये बात हम सब पर भी लागू होती है। जिंदगी के रास्ते में हमेशा पत्थर आते रहेंगे, देर, इनकार, नाकामियां, मगर याद रखें, हर मसले के पीछे कोई ना कोई हल छुपा होता है, तोहफा होता है। शिकायत मत करें, रुके मत, बस पत्थर हटा दें, क्योंकि Since the easiest way to come out of a problem is to face it, and those who act always find the gold. I hope this story will help you to learn how to overcome problems in life. Stay connected to Tales by Naksu. Show your love in comments and share the lesson with others. Have you ever sat alone in a quiet मसले से निकलने का सबसे आसान रास्ता यही है कि उसका सामना किया जाए, और जो अमल करते हैं वही सोना पाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ अपने प्यारों से इस कहानी को शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।